evening, everybody. This is Sunetra Pallav with the Public News 24, and today we are having a very special guest with us, Priyanka Shukla ma'am, who is the founder and director of Inner Journeys Within and Beyond. It's a specialized field of past life transgressions, spiritual healing, holistic healing, and it goes above and beyond what we know today and what has been discovered by science. Basically, what science has today is they are affirming everything that was already mentioned in the Hindu mythology, in our Vedas, in our text, that our soul is permanent. It just takes one form to the other, it does not die. So, if the soul does not die and carry with it a lot of memories, a lot of experiences, how to access them, how to heal using that information that is locked away in our subconscious mind. That is what ma'am does. Ma'am, welcome to our channel. Thank you so much. So, ma'am, tell us how you made your journey from being a graduate in the management field, upper management field, and then switching over to holistic healing. See, I think there comes a point in our life where we feel that whatever we are doing is just not enough. It's not giving me that happiness, or it's, in today's lingo, we call it the kick. So that's what happened with me, and I was looking for the purpose of my life. Like, what is it? Because I had done a lot of things. Okay, I've tried teaching in a college also. I've tried doing event management also, but it wasn't giving me that inner peace and happiness. So that is what began my quest to find myself. So as the name of a company suggests, Inner Journeys Within and Beyond. So that is what happened to me actually. So I started exploring within. So the inner journey started from there, and then it went beyond. So, who turned into a who turned you into a believer? What was your first experience? See, nobody can turn you into believing anything or a believer. Okay. I always say that there's a saying which says that seeing is believing. But when it comes to spirituality or healing or any kind of healing modality, I think first you need to believe it and then it will happen. So as you say that magic happens when you believe in magic. Understood. You create your magic, or when you believe in it. So when you believe in it, then it happens to you. Understood. So we at Inner Journey very strongly believe that we are not the ones who can convince anyone for healing. People usually come to us, when they have tried a lot of modalities. They have gone to doctors, they have gone to, say, every kind of healing that is available, medication is available, and then they come to us because it's a last resort. यदि मैं बात करूं किसी इजी लैंग्वेज में, यदि इसको समझना है, तो यू आर सेइंग कि माइग्रेन यदि किसी को है तो इस थेरेपी से ठीक हो सकता है। यदि प्रेजेंट लाइफ में अभी जो लोग देख रहे हैं और उनको समझना है कि यदि मेरे को माइग्रेन है, तो आप उसको सॉल्व, यदि आपके पास कोई आता है तो आपको थेरेपी स्टार्ट कैसे करती है कि माइग्रेन है, बोलते हैं माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो सामने वाले सुन रहे हैं कि हाँ माइग्रेन है वो भी इस थेरेपी से सॉल्व हो सकता है, तो क्या ऐसे केसेस भी आपने सॉल्व किया अभी? हाँ, माइग्रेन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिस पे हम वर्क करते हैं। माइग्रेन है या यूजुअली विमेन कम विद बैक एक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, ठीक है, दे कम विद घुटनों में दर्द का प्रॉब्लम। सो it is like a body response to your emotions. It is called mind-body connection, somatic connection. So usually women have this problem कि migraines भी होते हैं, पैरों में दर्द होता है या बैक एक्स होते हैं। क्यों होते हैं? Because my research and my study and my experience is कि जब आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते हो, so then जो आपका सपोर्ट सिस्टम है फिजिकल बॉडी का, स्पाइनल कॉर्ड, इट गेट्स इफेक्टेड। व्हेन आई एम नॉट एबल टू स्टैंड अप ऑन माई फीट, तो मेरे को पैरों में दर्द होगा, मेरे घुटने दर्द करेंगे। तो रही बात किसी का सेशन स्टार्ट करने की, तो पहले तो एक कॉग्निटिव सेशन होता है जब हम बात करते हैं, केस राइटिंग करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, हमको कहाँ जाना है, इस लाइफ में ही हील करना है, पास्ट लाइफ में जाना है, इस लाइफ में भी किस एज में जाकर के ये इशू हमको रिजॉल्व करना है। उसके बेसिस पे लाइन ऑफ थेरेपी हम डिज़ाइन करते हैं कि इसको हम से हिप्नोथेरेपी के सेशन के थ्रू हील कर सकते हैं, या हमको एक फास्ट वाइब्रेशन थेरेपी का सेशन करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे देन
एंड देन ऑब्वियसली व्हेन समबडी इज आस्किंग मी फॉर अ सेशन, तो मैं पहले ये बोलती हूँ कि एक मेडिटेशन का आई कैन सेंड देम अ वीडियो और एन ऑडियो एंड आई आस्क देम टू मेडिटेट, क्योंकि अगर वो मेडिटेट करेंगे तो उनको ट्रांस में जाने की आदत होगी। क्योंकि आप एक फ्रेश एक इंसान मेरे पास आए जिसने कभी मेडिटेट नहीं किया है, तो उसको ट्रांस में जाने में दिक्कत होगी। ओके। जो एक मेडिटेटर है, तो मेडिटेटर्स को अपने मेडिटेशन ट्रेन्स योर माइंड, सो द ट्रेन्ड माइंड इज इजी टू गो इन ट्रांस। तो उनको पता है कि उनको फोकस कैसे करना है। सी बिकॉज ऐसे भी केसेस मेरे पास आते हैं व्हेन पीपल से दे आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि कोई मुझे ट्रांस में नहीं ले जा पाया, कोई मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर पाया, मैं वो XYZ वो तो सबसे बड़ा हीलर है इंडिया का, उसके पास भी मेरा सेशन नहीं हो पाया। सो माय थिंग इज कि आपका सेशन कोई नहीं कर सकता है, आपको अपना सेशन खुद करना होता है। एज अ थेरेपिस्ट हम आपकी हेल्प करते हैं ट्रांस में जाने में, हम आपको ले जाके ट्रांस में छोड़ के नहीं आ सकते हैं। इट इज नॉट अ टाइम मशीन। Understood. So my work is only 30%. Rest 70% is your work. And if you are a meditator, if you are in a habit of doing meditation, if you believe in the therapy, then only you can be healed. तो एक जो फिल्मों में देखते हैं हिप्नोटिज्म कर दिया, हाँ, तो वो और ये जो अभी जो आप लोग जो करते हैं इसमें कितना अंतर है? ये जो फिल्मों वाला सही है कि जो आप करते हैं वो सही है? देखिए पेंडुलम हम भी यूज कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी के लिए, लेकिन जैसा फिल्मों में वो जो मिथ दिखाते हैं ना कि हम किसी को हिप्नोटाइज कर दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया तो उसने जाके किसी का मर्डर कर दिया और अपनी तिजोरी में से पैसे निकाल के आपको दे दिए, तो भाई ऐसा फिल्मों में ही होता है, ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता ना? एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है। एक्चुअल लाइफ में आपको कंप्लीटली आप अवेयर होते हो। इवन जैसे अगर मैंने अगर पंखा भी चला दिया जोर से, तो आप मुझे बोलोगे कि मेरे को पंखे की आवाज मे बी आपको इरिटेट कर रही होगी, तो आप बोलोगे, ठीक है, आपको ठंडा गर्म फील होगा, बाहर से आवाजें आएंगी, वो आपको पता चलेंगी। सो कई लोग इतने ज्यादा वो इस बात से भ्रमित होते हैं हिप्नोटाइज होने के बाद, तो मतलब अब मेरे को कुछ भी नहीं पता चलने वाला, आई विल बी लाइक डेड। जो एक मिथ है, एक पूरा तरीके से एक मिथ बनाया गया। हाँ, फिर बिकॉज जब वो लोग ऐसे लोग ट्रांस में जाते हैं तो बोलते हैं ये ट्रांस था क्या? क्योंकि मुझे तो सब सुनाई दे रहा था, मुझे तो सब फील हो रहा था, बाहर बच्चों के खेलने की आवाज भी आ रही थी। तो ये जो मिथ बनाया गया और एक जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे भारत की बहुत ही प्राचीन एक कल्चर थी और प्राचीन जो ऋषि मुनि थे सब करते थे। लेकिन एक फैशन बन गया है कि जब भी कोई अमेरिका से कोई करके आता है और यूएस में कोई ऐसा एक डॉक्टर ने बोल दिया, लिख दिया, तो फिर एक फैशन बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जबकि ये तो हजारों साल पहले की चीजें हैं सब, कि हम पास्ट लाइफ में जा सकते थे। हम पास्ट लाइफ में जा सकते थे एंड इट्स लाइक जैसे आपने बोला कि बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस है ये। मतलब हम अगर ये बात करें कि भागवत गीता में कृष्णा ने बोला है कि अ सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट टेक्स लाइफ टाइम्स। अगर हम महाभारत से ही एक इंसिडेंस उठा लें, जो शिखंडिनी थी, उसने कितने लाइफ टाइम्स लिए टू फुलफिल अपनी प्रतिज्ञा, टू किल भीष्म, है ना? बट हमें क्या होता है ना कि we actually believe things which are sold to us. We don't believe things which are easily available to us. हमें कोई आकर के बता के चला जाएगा तो हम मान लेते हैं। I don't know if it is appropriate to, actually say my heart out on screen, but I feel कि हमें वो गुलामी की ना आदत हो गई है। तो हमें कोई फिरंगी आके कोई बात बता देता है तो हम समझ जाते हैं, अब उसको मान लेते हैं कि हाँ सही है। हमारा ट्रेडिशन हमें इतना अच्छा नहीं लगता है जितना हम मतलब दूसरों की किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन अपने वेद पुराण, अपने शास्त्र, 200 साल की ब्रेन वॉशिंग हुई है। हाँ, तो वो जो हमें आदत हुई है ना, इट्स लाइक इट्स आल्सो समथिंग जेनेटिकली इम्प्रिंटेड ऑन अस। 200 साल अगर हमारे पूर्वज गुलाम रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी कोई एक जीन है उस गुलामी की। तो अब लोग ऐसा क्यों करते हैं वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा माइंड ट्रेंड है कि जो बाहर से आ रहा है वो अच्छा है। एक तो पूरी दुनिया देख रही है। इट्स लाइक हमारे देश से कोई कपड़ा बन के बाहर जाता है या हमारे देश में ही सर्कुलेट हो जाता है, लेकिन ब्रांड अमेरिकन होती है या यूएस की होती है, यूके की होती है, और हम उसको ज्यादा पैसे देके खरीदते हैं, और बनता कपड़ा कहाँ पर है हमें पता है। तो ये जो पास्ट लाइफ में ट्रांस में जाने का, यदि मुझे जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? विद द हेल्प ऑफ यू, या फिर कोई भी ऐसा गाइड मिले
नहीं, ये आई वुड एक आम आदमी यदि सोचे कि मुझे पास्ट लाइफ में जाके मुझे अपने आप को हील करना है, तो मैं वो कैसे करेगा? See, it is always good to go in trance with a certified past life regression therapist or a clinical hypnotherapist.